टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, our first question is integration of x tan inverse x dx, x tan inverse x dx। तो इसमें हम जैसे लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था इंटीग्रेशन ऑफ u into v dx that is equal to u as it is integration of v dx minus derivative of u integration of v dx। तो वही फॉर्मूला हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम देंगे फर्स्ट फंक्शन है हमारा tan इनवर्स x, so our solution will be integration of x tan inverse x dx। so ये है हमारा that is u function and this is v function। so हमारा फॉर्मूला था u as it is that is tan inverse x as it is integration of v minus derivative of u and integration of v into dx, integration of v into dx। so हमारा सॉल्यूशन होगा tan इनवर्स x integration of x dx will be equal to x square by 2, integration of x dx will be equal to x square by 2 minus integration of derivative of tan inverse x dx will be equal to 1 by 1 plus x square, 1 by 1 plus x square into dx, x integration of x dx will be equal to x square by 2 dx, x square by 2 dx। so our next step will be x square into tan inverse x by 2 minus हमारी कांस्टेंट टर्म है जो बाहर आ जाएगी माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो नेक्स्ट इसका सोल्यूशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बाई 2 एज इट इज माइनस कांस्टेंट टर्म भी हमने बाहर ले ली। अब इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को, तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, add and subtract 1 we get तो हमारी फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी x स्क्वायर tan इनवर्स x by 2, x स्क्वायर tan इनवर्स x by 2 minus 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 minus 1 डिवाइड by 1 plus x square into dx। so our solution become x square tan inverse x by 2 minus 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, इसमें हम क्या करेंगे 1 plus 1 by x square को क्या ले लेंगे कॉमन, तो हमारी वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 1 by 1 plus x square into dx। so now integrate the value x square tan inverse x by 2 minus 1 by 2 constant टर्म हमारी बाहर आ गई। so 1 dx is equal to 1 dx minus integration of 1 divided by 1 plus x square into dx। so our value will be equal to x square tan inverse x by 2 minus 1 by 2, 1 dx is equal to x minus tan inverse x plus c हमारी क्या आ गई कांस्टेंट टर्म। so this is our solution x square tan inverse x by 2 minus 1 by 2 x minus tan inverse x plus c, this is our solution। तो इसमें हमने क्या किया, हमारे पास इक्वेशन गिवन थी, हमारे पास क्वेश्चन गिवन था x tan inverse x dx। so this is u function and here this is v function। तो
हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था इंटीग्रेशन ऑफ u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ u v dx विल बी इक्वल टू u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx into dx. So our solution becomes u as it is integration of v minus derivative of u इंटीग्रेशन ऑफ v into dx. तो इसमें हमारी टर्म क्या है tan इनवर्स x as it is इंटीग्रेशन ऑफ x dx will be equal to x square by 2 minus d by dx derivative of tan inverse x will be equal to 1 by 1 plus x square and integration of x dx will be equal to x square by 2 into dx. So here our next step is इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी वैल्यू क्या आई x square tan inverse x by 2 minus 1 by 2 x square 1 plus x square into dx. तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा हम इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 तो हमारी वैल्यू इसकी इक्वल होगी फर्स्ट टर्म हमारी एज इट इज सेकंड टर्म में हम करेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 वी गेट 1 minus 1 by 1 plus x square into dx. So our next step will be integration of 1 dx minus हमने अलग अलग कर दिया इंटीग्रेशन और मल्टीप्लाई कर दिया dx के साथ तो इंटीग्रेट किया तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया x के tan inverse x by 2 minus 1 by 2 integration of 1 dx will be equal to x and integration of 1 by 1 plus x square will be equal to tan inverse x plus c. So our next question will be नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम हमारा एज इट इज इसी की तरह है सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा इंटीग्रेशन ऑफ u v dx देन उसके बाद हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन सेकंड इज इंटीग्रेशन ऑफ log 1 plus x square log 1 plus x square into dx. So our solution becomes तो हमारी वैल्यू क्या होगी log 1 plus x whole square dx will be equal to so our solution will be equal to integration of log 1 plus x square into 1 dx. तो ये हमारा क्या होगा this is u function and 1 is v function. So this is u function and here is v function. So next step हमारा क्या होगा u as it is it means log 1 plus x square as it is integration of v 1 dx minus derivative of u means log 1 plus x square and integration of v dx into dx. So our next step will be log 1 plus x square as it is log 1 plus x square integration of 1 dx will be equal to x minus derivative of log 1 plus x square will be equal to 1 by 1 plus x square multiply 2x integration of 1 dx will be equal to x dx. So next step हमारा क्या होगा जो कांस्टेंट टर्म होगी हम उसको बाहर ले लेंगे. इसमें हमने क्या किया हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा सेम वही टर्म रहेगी तो ये हमारा हो गया u फंक्शन एंड दिस वन इज v फंक्शन. तो हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई किया इंटीग्रेशन ऑफ u v dx विल बी इक्वल टू u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v इनटू dx. So our next step will be log 1 plus x square integration of 1 dx will be equal to x minus derivative of log 1 plus x square will be equal to 1 by 1 plus x square into 2x integration of 1 dx will be equal to x into dx. So our next step will be log 1 plus x square log 1 plus x square minus इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म को हम बाहर ले लेंगे तो हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है 2 इंटीग्रेशन ऑफ x square डिवाइड बाय 1 plus x square into
we get x log 1 plus x square, x log 1 plus x square minus 2 integration of x square plus 1 minus 1 divided by 1 plus x square into dx. Then our next step will be x log 1 plus x square minus 2. अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों टर्म्स को सेपरेट कर देंगे. सो आवर वैल्यू बिकम एक्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. So our value become x log 1 plus x square minus 2 integration of 1 dx will be equal to x minus integration of 1 by 1 plus x square will be equal to tan inverse x plus c is our constant term. So this is our solution, x log 1 plus x square minus 2x minus tan inverse x plus c. This is our solution. तो इसमें हमने क्या किया, हमारे पास एक फंक्शन गिवन था log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसको हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फंक्शन वो ही रहेगा. तो हमारे पास दो फंक्शन हो गए u और v. तो हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई किया. तो फॉर्मूले में क्या था, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v इनटू dx. सो आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी integration of 1 dx will be equal to x. This one is as it is minus derivative of log 1 plus x square will be equal to 1 by 1 plus x square and the derivative of x square will be equal to 2x. इसमें क्या होती है, पावर आगे आ जाएगी and the integration of 1 dx will be equal to x into dx. So our next step will be first term as it is minus जो constant term थी उसको हमने बाहर ले लिया, that is 2 and integration of x into x is x square divided by 1 plus x square into dx. अब इसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया 1 सेकंड टर्म में. इस टर्म में हमने 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया. तो हमारी वैल्यू क्या आई, x log 1 plus x square minus 2 x square plus 1 minus 1 divided by 1 plus x square into dx. So our next step will be, इसमें हमने क्या कॉमन ले लिया, x square plus 1 के साथ हमने दोनों को डिवाइड कर दिया. तो ये इसको भी रद्द कर लिया और इसके साथ भी. तो हमारी वैल्यू क्या आई, 1 minus 1 by 1 plus x square into dx. तो हमने इंटीग्रेशन के साथ टर्म्स को सेपरेट आउट कर लिया. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx will be equal to x and integration of 1 by 1 plus x square will be equal to tan inverse x plus c. So this is our solution. So our next question will be, तो इसमें हम सभी में बस फॉर्मूलाज अलग होंगे, पैटर्न अलग होगा क्वेश्चन का और फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे विद द सेम फॉर्मूला. सो आवर थर्ड क्वेश्चन विल बी, integration of sin inverse 3x minus sin inverse 3x minus 4x cube into dx. sin inverse 3x minus 4x cube dx. तो इसमें हम क्या करेंगे, पुट x is equal to sin थीटा. इसमें हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, हमारे पास गिवन टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स 3x minus 4x cube into dx. तो इसमें हम पुट करेंगे, पुट x is equal to
sin थीटा, इसमें हमने x की वैल्यू को क्या पुट किया sin थीटा, तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे डेरिवेटिव इसके इक्वल होगा dx विल बी इक्वल टू cos थीटा d थीटा। तो ये हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, हमारे पास गिवन इक्वेशन है इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स 3x minus 4x cube into dx that will be equal to integration of sin inverse 3x की वैल्यू हमारे पास क्या है sin थीटा, तो 3 sin थीटा minus 4 sin क्यूब थीटा dx की वैल्यू हम पुट करेंगे cos थीटा d थीटा। So our solution become sin inverse 3 sin theta minus 4 sin cube theta will be equal to sin 3 theta. So integration of sin inverse sin 3 theta into cos theta d theta, that will sin inverse theta into sin theta will be equal to 1. So sin inverse sin theta will be equal to 1. So our value become integration of 3 theta cos theta d theta. So our value become integration of 3 theta cos theta d theta. तो दिस ये हमारी क्या हो गई sin इनवर्स sin थीटा, हमारे पास क्या हो गया 1, तो 3 थीटा cos थीटा, अब इसमें हम लेंगे दिस इज u फंक्शन एंड दिस वन इज v फंक्शन, तो सेम हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ u v dx विल बी इक्वल टू u एज इट इज integration of v dx minus derivative of u and integration of v dx. तो ये सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो हमने सभी सम्स में अप्लाई किया। सो u एज इट इज 3 थीटा एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v मींस cos थीटा d थीटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ u and integration of v cos theta d theta into d theta. So next integration of cos theta d theta will be equal to sin theta, so our value becomes 3 theta sin theta minus derivative of d theta by 3 theta will be equal to 3 integration of cos theta d theta. So our value become 3 theta sin theta minus 3 integration of cos theta d theta again will be equal to sin theta. So our value become 3 sin theta plus c. So our solution become 3 theta sin theta plus 3 sin theta plus c. So this is our solution. इसमें हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया, इसमें अगेन हम इसमें करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा d थीटा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ cos थीटा, सो आवर सॉल्यूशन बिकम्स 3 थीटा sin थीटा minus 3 integration of sin theta d theta will be equal to minus of cos theta plus c. So our solution becomes 3 theta sin theta plus 3 cos theta plus c. So this is our solution. तो इसमें हमने क्या किया, हमारे पास गिवन टर्म थी दैट इज sin इनवर्स 3x minus 4x cube into dx। तो इसमें हमने क्या किया, हमने फर्स्टली पुट किया पुट x is equal to sin थीटा, तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या हुआ dx will be equal to cos थीटा d थीटा, cos थीटा d थीटा। तो इसमें हमने क्या किया, जहां x था वहां हमने पुट किया sin थीटा, तो हमारी वैल्यू क्या है sin इनवर्स एज इट इज 3x की जगह हमने पुट किया sin थीटा माइनस 4x क्यूब मींस sin क्यूब थीटा, और dx की जगह हम पुट करेंगे cos थीटा d थीटा, तो हमने dx की जगह पुट किया cos थीटा d थीटा। सो आवर सॉल्यूशन बिकम sin इनवर्स 3 sin थीटा minus 4 sin क्यूब थीटा will be equal to sin 3 theta into cos theta d theta. So our solution becomes sin inverse sin theta will be equal to 1. So हमारे पास वैल्यू आई 3 theta cos theta into d theta. So here is u function and this is v function. तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया
So our next question will be, इसमें पहले हमने x को sin थीटा पुट किया, फिर इसका डेरिवेटिव किया, फिर उसमें वैल्यूज पुट की और फिर सेम हमने वही uv फॉर्मूला यूज किया और सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। अब हम नेक्स्ट सेम इसी तरह क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन फोर्थ इज इंटीग्रेशन ऑफ sin अंडर रूट x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin अंडर रूट x dx विल बी इक्वल टू, इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम अंडर रूट x को हम क्या पुट करेंगे t, देन उसका डेरिवेटिव करेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, आवर सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin अंडर रूट x dx, इसमें हम पुट करेंगे पुट अंडर रूट x इज इक्वल टू t, so 1/2 x minus 1/2 dx will be equal to dt, 1/2 अंडर रूट x dx will be equal to dt। तो ये वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे। फर्स्टली हम पुट करेंगे दैट अंडर रूट x will be equal to 2 t and dx will be equal to 2 अंडर रूट x dt। तो dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू dx will be equal to 2 under root x dt and here the value of under root x will be equal to t, so dx will be equal to 2t dt। तो ये वैल्यूज हम यहाँ यूज करेंगे और इसमें पुट करेंगे। So the value of dx will be equal to 2t dt, तो ये वैल्यूज हम यहाँ यूज करेंगे। तो हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ sin अंडर रूट x dx, sin अंडर रूट x dx, so that will be equal to sin as it is, अंडर रूट x की जगह हम क्या पुट करेंगे t and the value of dx will be equal to 2t dt। so हम कांस्टेंट टर्म हम बाहर रखेंगे, 2 बाहर रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या है sin t square dt, that will be equal to sin t square dt। तो अब हम यूज करेंगे t sin t dt, so यहाँ क्या आएगा t sin t dt, t sin t dt। तो इसमें हम अगेन हम फॉर्मूला यूज करेंगे u as it is integration of v minus derivative v of u and integration of v। so here this is u function and there is v function। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे u as it is integration of v minus derivative of u integration of v into dt। so our solution become t integration of sin t dt will be equal to minus of cos t, minus of cos t minus dt by dt will be equal to 1, integration of minus sin t cos t will be equal to minus of cos t into dt। so our solution becomes 2 as it is minus t cos t, integration of cos t will be equal to sin t plus c, c हमारी क्या होगी कांस्टेंट टर्म। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया है 2 as it is minus 2 cos t plus sin t plus c। अब इसमें हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे वैल्यू, पुट t is equal to under root x, t की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं under root x। so our solution becomes 2 as it is, t की जगह हम क्या पुट करेंगे under root x, so under root x cos under root x plus sin under root x plus c। so this is our solution। तो इसमें हमारे पास क्या था, हमारे पास टर्म गिवन थी sin अंडर रूट x dx। तो इसमें हमने क्या किया, अंडर रूट x को रिप्लेस किया किसके साथ, t
थी इसकी 1/2, डेरिवेटिव में पावर क्या हो जाती है एक कम, तो क्या आई 1/2 x माइनस 1/2 dx इज इक्वल टू dt। सो यहाँ से ये पावर क्या थी x माइनस 1/2, तो प्लस करने के लिए इसको नीचे ले आए, दैट इज 1/2 अंडर रूट x dx इज इक्वल टू dt। सो यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, ये वैल्यू dt के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट x dt, और अंडर रूट x को हमने रिप्लेस किया हुआ किसके साथ, t के साथ, तो अंडर रूट x को हमने लिख दिया, दैट इज dx विल बी इक्वल टू 2t dt। अब हमारे पास टर्म गिवन थी sin अंडर रूट x dx विल बी इक्वल टू sin एज इट इज, अंडर रूट x की जगह हमने क्या पुट किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू t, तो हमने पुट किया sin t, dx की वैल्यू को हमने पुट किया 2t dt। सो नेक्स्ट हमने क्या किया, 2 हमारी कांस्टेंट टर्म थी तो इसको बाहर ले लिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या है t sin t dt। सो देयर हियर इज u फंक्शन एंड दिस इज v फंक्शन, तो वी अप्लाई द सेम फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ u v, 2 कांस्टेंट टर्म है, सो u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v इनटू dt। सो नेक्स्ट हमने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ cos t, dt by dt will be equal to 1, integration of sin t dt will be equal to minus of cos t dt, so our solution becomes 2 minus t cos t plus sin t plus c। उसके बाद हमने क्या किया, लास्ट स्टेप में हमने t को किसके इक्वल रखा था, अंडर रूट x के इक्वल, सो t की जगह हमने क्या पुट कर दिया, अंडर रूट x, so our solution become 2 minus अंडर रूट x cos अंडर रूट x plus sin अंडर रूट x plus c, this is our solution। so बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।